Hi guys, today we are going to study about rest motion and kinematics. So, kinematics is a branch of physics which deals with motion of bodies without concerning its cause of motion. So, it deals with motion of bodies without concerning its cause. Now, we will be studying kinematics in 4 parts. First, parameters of motion. Which will be including distance, displacement, speed, velocity, average, instantaneous speed, velocity and acceleration. Second, we will be dealing with motion in a straight line. In this, we will be deriving equations of motion of a particle moving in a straight line. Third, we will be studying about motion in a plane. And fourth, we will be studying about relative motion. So, these are the topics we are going to cover eventually. Now, what do you mean by rest? So, rest किसे कहते हैं? एक बॉडी रेस्ट पे रहता है जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता टाइम के साथ. So, a body is at rest when it doesn't changes its position with time. मतलब सपोज ये डस्टर यहाँ पे है तो ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ. जैसे 1 सेकंड में इसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया तो ये रेस्ट में है. मोशन क्या होता है? अगर ये अपना मोशन अगर ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड एज मोशन. बट ऐसा सोच लो कि तुम इसी डस्टर को, ये रेस्ट पे था, इसी को अभी हम देखेंगे मून से. सपोज हमने ये डस्टर को मून से देखा तो मून से क्या दिखेगा कि अर्थ घूम रहा है. इफ अर्थ इज रोटेटिंग then the duster itself is rotating. So what does this mean? So this simply means that motion is a combined study of object and observer. Okay? So अभी तक क्या पता चला? Motion is a combined study of object and observer. Okay? So इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि मोशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है. मोशन हमें तभी दिखेगा जब हम उसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी किसी एक जगह से देख रहे हैं. राइट? सो बेसिकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. सो फर्स्ट we will take the standard frame of reference and try to locate the position of a particle. We need to understand how to write the position vector of a particle. So standard coordinate system is xyz. In the Cartesian plane we have taken xyz as a standard coordinate. Now suppose there is a particle p here. Okay? तो अगर अभी हम इसका position coordinate यानी एक बंदा है या जो यहाँ पे खड़ा है. So there is a person who is standing here, okay, at this origin. ये इस पोजीशन को कैसे दिखेगा? Suppose ये वाला है x1, this is x1, okay, this is y1, and this part, suppose it's z1. So इसका position coordinates, let's assume कि इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 and z1. So
व्हाट डज दिस मीन बेसिकली? इसका मतलब क्या हुआ कि इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, मैं एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है, तो ही हैज टू मूव x1 इन x plane, okay, then y1 in y plane and z1 in z plane to get into this position. Are you understanding? Like if I am standing here and suppose there is a container which is kept in this p position, I want to locate the position of the container. So how do I locate it? First I go x1 distance in x plane, y1 distance in y plane and z1 distance in z plane. This is the way I write my position coordinate. So first part of parameter of motion, we understand how to write the position vector of a particle in a space. Okay, now there is another particle, suppose here q. Iska position coordinate, suppose this is x2, y2 and z2. Okay, now this position coordinate, it is in standard form written as xi cap plus yj cap plus zk cap. Why is it written like this? Because the person standing at O origin has to move x1 distance in x plane, y1 distance in y plane and z1 distance in z plane. So that's why we write a position vector as this. Okay, so position vector of p, rp with respect to O, position vector with respect to anything is given by this representation, position vector of the particle with respect to O. Okay, so this is how much? x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. What are these I cap, j cap, k cap? They are the components that are direction in x direction, y direction and z direction. Okay, then what is the position coordinate of q? This is again x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Now suppose you are standing at p position. Now you want to locate q with respect to p. Okay, means अब वेक्टर में अभी ये तो समझ में आ गया कि पोजीशन लोकेट करने के लिए हम लोग हमेशा वेक्टर नोटिफिकेशन वेक्टर यूज कर रहे हैं, राइट? तो अभी इस पॉइंट को हमने लोकेट किया है आर वेक्टर, आर पी विद रिस्पेक्ट टू ओ से. ओके, पी पोजीशन को. तो सपोज आई एम स्टैंडिंग एट दिस पी पोजीशन, मैं पी पोजीशन पे खड़ी हूँ. तो हाउ डू आई राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू? मतलब पी से क्यू का पोजीशन कैसे लिखेंगे? तो पहले विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, दिस इज R1, okay, this is RPO, we can write this is RPO, right? This is RQO, right? ये RPO है, ये RQO है. अभी with respect to origin मतलब arrowhead towards, मतलब origin से देख रहे हैं. जहाँ से देखोगे वहाँ से लेकर जहाँ देखोगे वहाँ पर उस डायरेक्शन में arrowhead होना चाहिए. तो ये ऑरिजिन से इस पॉइंट को देख रहा था, एरोहेड इस डायरेक्शन में. ये ऑरिजिन से क्यू को देख रहा था, एरोहेड इस डायरेक्शन में. मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी पी से लेके क्यू तक देखूंगी, मतलब मुझे पी पॉइंट से क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है. सो इसका एरोहेड किस तरफ होगा? इस तरफ, राइट? सो आर पी क्यू क्या होगा? आर पी क्यू क्या होगा? आर पी क्यू, आर पी क्यू इज इक्वल टू position vector of P minus position vector of P minus position vector of Q, right? ये हम कैसे लिखे हैं? Vector addition, law of vector addition. This plus this will give you this, right? So RPQ plus RQ is equal to RP. सही है? RP क्या होगा? RPQ plus RQ. बिल्कुल ओके. तो अभी हमने पढ़ लिया पोजीशन वेक्टर. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड एक क्वांटिटी विच इज नोन एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो नाउ अभी हम पढ़ने वाले हैं एक अलग इसी से रिलेटेड एक क्वांटिटी, जिसको कहते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ चलो फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वापस चले जाते हैं. काइनेमैटिक्स में कुछ नहीं है विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो ऑलवेज यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव अ
frame of reference. So suppose there is a point P, okay, and there is a point Q here, there is a point R, fine. Now suppose you started walking from Q to P to R, you started walking in this direction, okay, and you finally reached at point R. So what is distance? Distance मतलब दूरी. What do you mean by distance? So it is the total path length covered during the journey of the particle. So if you are standing at position Q, then you covered the entire path. So distance is what? Q P R, है ना? Distance क्या हो गया? ये पूरा distance, ये पूरा दूरी, पूरा का पूरा जो distance इसमें cover किया गया है. लेकिन what is displacement? ये बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पूरे जर्नी में. विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? दिस पार्ट, राइट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके. तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. नाउ समझ में आ गया ना? और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे. सपोज ये एक सर्कल है, तो एक आदमी है जो यहाँ पे घूम रहा है सर्कल में. चलो मान लेते हैं कि आदमी घूम के वापस आके इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, सर्कल में घूम के वापस इसी पोजीशन पे आ गया. तो व्हेन इट इज कमिंग टू इट्स ओन पोजीशन, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये पूरा का पूरा आर्क लेंथ. तो डिस्टेंस कितना होगा इसमें? पूरा आर्क लेंथ, फुल आर्क लेंथ कितना है वो? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, मान लो इसका रेडियस r है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा 2πr. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैंने क्या बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? यहाँ तो अभी तुम बोलोगे भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, वो तो अपने पोजीशन पे आ गया. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मतलब इसका इनिशियल पोजीशन क्या था? इनिशियल ये था, फाइनल क्या हो गया? फिर से यही हो गया ना. तो फाइनली और इनिशियल में डिस्टेंस कितना रहा? 0. तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0. कूल, ओके. डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी. ये क्या होता है? स्केलर. अच्छा, आप पूछोगे अभी स्केलर क्या है मैम? स्केलर होता है जिसमें कि कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है. जैसे कि डिस्टेंस में हम लोग इसमें सिर्फ डायरेक्टली लिख देते हैं कि इसका टोटल कितना दूरी इसने कवर किया है मीटर. इसमें हम नहीं ये लिखते कि ये किस डायरेक्शन में गया, ये चाहे ऐसे आया या ऐसे गया, ऐसे गया, हमें फर्क नहीं पड़ता. हमको अगर पता है कि ये कितना इसका टोटल डिस्टेंस है, मतलब टोटल ये कितना लेंथ है इस टोटल चीज़ का, टोटल पाथ का, तो हम लोग का हो जाता है वो डिस्टेंस, ठीक है. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है कि इसमें तुम्हारा डिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट. डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि यहाँ पे इस पोजीशन पे इफ द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन एनी अदर पाथ, बट स्टिल फर्स्ट यू नीड टू कंसिडर विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड देन you need to think if it is traveling in this direction from Q to R, then उसका डायरेक्शन ऐसे होगा. जा रहा है ना Q से R तक, तो डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, Q से लेके R तक, एरो इस हेड में होगा. तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, ठीक है. तो डिस्टेंस के साथ प्लस डायरेक्शन अगर करोगे, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ओके. तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, डिस्टेंस में हमेशा कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिलेगा, पर डिस्प्लेसमेंट में ज़रूरी नहीं है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, बट डिस्टेंस अगर कोई मोशन हो रहा है, इन केस ऑफ एनी मोशन, फॉर एनी मोशन, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव स्केलर, ठीक है. मतलब पॉजिटिव स्केलर का क्या मतलब हो गया? डिस्टेंस का हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आता रहेगा, पर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? वैल्यू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. मतलब इट कैन बी 0 और इट कैन हैव अ वैल्यू. अच्छा, आप पूछोगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं. कब होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल? मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू किए और इसी डायरेक्शन में चल के यहाँ पर स्टॉप हो गए,
तो A से लेके B पोजीशन तक आपका डिस्टेंस क्या हो गया? सपोज ये 10 मीटर है, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया? 10 मीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सेम एज 10 मीटर, सही ना? क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बॉडी, इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ straight line or if there is a 1D motion, then distance and displacement are equal. Okay, you got it? So this is the basic difference between distance and displacement. What are these? These are parameters of motion.